احترام کی صدارت ہمارے سابق صدر یونین جاوید حبیب صاحب کریں گے. دیکھیے سر سید کو آج کے تناظر میں ہم غور کرتے ہیں ایئر کنڈیشن حالوں میں بیٹھ کر بدر 1857 کی اس مصیبت میں جاتی ہے جی. اور مولانا آزاد کو ہم آج اس وقت تجزیہ کرتے ہیں. اس وقت جب تقسیم وطن ہو گئی تھی اور ہندوستان میں نفرت کا سیلاب تھا, اس وقت مولانا محمد علی وہ اس وقت مولانا آزاد کو یاد کیجیے, اس وقت حفیظ الرحمان صاحب کو یاد کیجیے, اس وقت مفتی تقی الرحمان صاحب کو یاد کیجیے, اس وقت حسین احمد مدنی صاحب کو یاد کیجیے. آج کے زمانے میں سر سید کو بھی ریلیونٹ بنائے اور مولانا آزاد کو بھی. اسلام کے صاحب کی کتاب میں بعد بہت اچھے حقائق ہیں, لیکن کہیں کہیں زبان بڑی ترش ہو گئی ہے, تو معروضیت کہیں کہیں متاثر ہوتی ہے. اور جو سر سید کا خاصہ تھا کہ معروضیت میں انہوں نے بات کی. اور مولانا آزاد اور سر سید دونوں عظیم شخصیات ہیں, دونوں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے ان کے کنٹریبیوشن ہیں. اور غدر 1857 کے بعد سر سید کے کنٹریبیوشن سے پوری دنیا کا طاقت انکار نہیں کر سکتی. اور آزادی ہند میں مولانا آزاد نے جو موقف اختیار کیا, ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مضبوطی کے ساتھ وہ اپنا جو انہوں نے روز اول موقف قائم کیا تھا آزادی تک قائم رہا. اب افسوس ہے ہماری کہ ہم کیا کریں, ہم ایسی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے زمانے میں پاکستان بننے کے بعد ہم پیدا ہوئے. آپ لوگ میں تو پاکستان بننے کے میری اتفاق سے 48 میں پیدا ہوا. تو اس کتاب سے ہمیں معروضی بحث کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اشتہار میں آئیں, سنجیدگی سے بحث کریں. اور جو بنیادی سوال انہوں نے اٹھائے پولیٹیکل, عارف الاسلام صاحب سر سید کی پولیٹیکل فلاسفی کے تعلق سے بہت ریلیونٹ ہیں آج کے زمانے میں. جاوید بھائی, آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہر انسان میں کچھ نگیٹو پازیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے سر سید صاحب کی کچھ مشن کے 3 پوائنٹس کہا, وہ میں چاہوں گا کہ وہ آپ. سر سید کا مشہور قول ہے لارج ہارٹیڈ ٹالرنس, فری انکوائری, پیور مورلٹی. لارج ہارٹیڈ فراخ دلانہ تحمل, آزادانہ تحقیق اور حقیقی اخلاقیت, 3 بنیاد. تو اب علی گڑھ والوں کا کام ہے, جامعہ والوں کا کام ہے جو علی گڑھ کی برادری کا, اور دلی کے دانشوروں کا کام ہے. اب دانشوروں کا لطیفہ سن لیجیے. ایک سبوت خان صاحب ہوم منسٹر تھے, اور تو انہوں نے لطیفہ سنایا کہ 50 ٹیررسٹوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے, 4-5 گھنٹے ان سے گفتگو کی جائے تو متحد ہو جاتے ہیں, لیکن 5 دانشور 5 دن کو بھی آپ متحد کریں گے وہ نہیں ہوتا. تو یہ دانشوری کی آزاد فکری, لیکن آزاد فکری کے معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دل آزاری ہیں. تو اگر دل آزاری کہیں ہوتی ہے تو وہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کی کتاب بہت اہم ان کی کتاب ہے اور اس کو بہت سنجیدگی سے ہمیں کرنا چاہیے. اور نہ تو تنقید, ہمارا اردو والوں کا مزاج اصل میں کیا ہے, مرثی اور قصیدے کا ہے, یا تو قصیدہ پڑھتے ہیں یا مرثیہ پڑھتے ہیں, فعل ممتنع ہوتا ہی نہیں. اور سر سید کی نثر اور مولانا آزاد کی نثر کا فرق مثلا اس پہ بحث کی جا سکتی ہے. سر سید نے جو نثر ایجاد کی وہ چل رہی ہے آج, مولانا آزاد کی جو نثر تھی وہ بہت کم ہے آج سمجھنے والے. سید حامد صاحب کا نام لے سکتے ہیں آپ, یعنی موحدہ لوگوں میں سید حامد صاحب. تو ادبی کنٹریبیوشن, صحافتی کنٹریبیوشن, تعلیمی کنٹریبیوشن, مذہبی کنٹریبیوشن اور صحافتی کنٹریبیوشن. سر سید سیکولرزم کے حامی تھے اور وہ سیاست کے مخالف تھے. سر سید سیاست کے مخالف نہیں تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت مسلمان تعلیمی طور پر اتنے قابل نہیں ہے کہ سیاست میں, خود وہ سیاست میں تھے, خود کونسل کے ممبر تھے بھائی, خود آپ سمجھ گئے نا فرق. اور غلط فہمی کیا پیدا کی, پاکستان کے لوگوں نے سر سید کی بیچاری کی 2 دھاری تلوار گری. پاکستان کے لوگوں نے تو کہا کہ سر سید بانیے پاکستان کو. اب ہندوستان میں اس کے جواب میں لوگ سر سید کو وہ بنانے لگے کہ گویا سیکولرزم انہوں نے ایجاد کیا. یہ دونوں باتیں مناسب نہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تحریک کی سب سے بڑی خوبی ہے جو بہترین نیشنلسٹ اور بہترین کمیونٹی لیڈر, یعنی راجا مہندر پرتاپ کے زمانے کے لوگ, اور مولانا محمد علی اور شوکت علی اور شیخ عبداللہ اور خان عبدالغفار خان, یہ سب بھی تو علی گڑھ کی پیداوار ہے. اور مولانا محمد علی اور لیاقت علی خان اور چودھری خلیق الزماں اور ایوب خان اور پوری ایک نسل, تو ایک پاورفل تحریک میں دونوں, اور کمیونسٹ بھی پیدا ہوئے, پروفیسر عرفان حبیب آج, اور اس میں ادب کے اندر ترقی پسند پورا موومنٹ, اور پھر جماعت اسلامی سے متعلق اسلامی ادب. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہت بڑا ادارہ ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ دیوبند اور علی گڑھ, اتفاق سے میں کہنا بھول گیا وہاں سے, دونوں مولانا مملوک علی کے شاگرد تھے, سر سید بھی اور مولانا قاسم احمد. تو دونوں نے جس نیت سے اور جس استقلال سے, جس مضبوطی سے ان اداروں کو قائم کیا ہے, آج ان اداروں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ان پر سے غور کرنا چاہیے. اور ویسی ہی سادگی اور قناعت کی زندگی ہونا چاہیے. یہ نہ ہونا چاہیے کہ پروموشن اور ریٹائرمنٹ اور مکانات, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم دیوبند اور علی گڑھ کو مائنس نہیں کر سکتے ہندوستان کی تاریخ. تو کہیں نہ کہیں جاوید صاحب یہ
कहने का जज्बा देती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त आपको मालूम है 3 साल से स्टूडेंट्स यूनियन नहीं। बुश साहब तो फौजे भेज के जमहूरियत कायम करते हैं और हमारे वज़ीर आज़म बुश साहब से बेहतरीन ताल्लुकात रखते थे, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया में स्टूडेंट्स यूनियन नहीं। व्हाट डज इट मीन? राहुल गांधी को बुलाया जाता है अलीगढ़ में, 800 लड़कों को बाकायदा स्क्रीनिंग के बाद पेपर दिए जाते हैं, उनको सवाल दिए जाते हैं, ये क्या जमहूरियत? आज़ादी सर सैयद ने जब यूनियन बनाई थी, स्टूडेंट्स क्लब उसका नाम था, और आज़ादा उसमें स्पीकर्स क्लब था, राइटर्स क्लब था, मशायरा होता था, कभी सम्मेलन होता था, सेमिनार होते थे, ऑल इंडिया बहस होती थी उस पर, मसाइल हाजरा पर, और बिल्कुल मुतदाद किस्म के लोग। मुरारजी देसाई को बुलाया हमारे ज़माने में अलीगढ़ में। मुरारजी देसाई ने कहा कि आप मेरे पे पत्थर, वो फूल गिरते हैं अलीगढ़ में यूनियन से, तो मुरारजी देसाई फूलों के बाद बोले कि आप मेरे पे पत्थर फेंके या फूल, मेरे जो नज़रियात हैं वो मैं यहाँ बोलूँगा। इसी लड़के ने कुछ नहीं कहा। पीलू मोदी गए, वो हैरत में रहे, और उन्होंने कहा कि मैंने ये गए कुलदीप नैयर साहब उस ज़माने में सन 72 के बाद, तो जब वो स्टाफ क्लब में गए और वहाँ लोगों को देखा, और हम तालिब इल्म की हैसियत से उनको बुलाने वालों में थे, तो वो कहने लगे कि मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि यहाँ साइंस की भी फैकल्टी है और इंजीनियरिंग की भी है। तो हमारी अलीगढ़ की जिम्मेदारी क्या है? इस सर सैयद की फिक्र के साथ साथ सर सैयद की अमली जो जहद थी, जो जज्बा था, जो कुर्बानी का जज्बा था, और अपनी ज़ात को बंजामेट करके कौम के लिए काम करने का, ये आज के अलीगढ़ में होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो हम फिर एंटी सर सैयद और मौलाना आज़ाद ने सादगी और इस्तेकामत की जिंदगी गुजारी और कोई मादी फायदा नहीं उठाया। ये आज के कांग्रेसी लीडरों में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसके माने वो मौलाना आज़ाद को दिल से तस्लीम है। पढ़ी तो नहीं है, लेकिन उसको जो कुछ सुना उसके लिहाज से आज वक्त की ज़रूरत है इस तरह की जो है तहकीकात करके मिल्लत इस्लामिया को और आम आवाम को बताया जाए आज के हालात में बुजुर्गों का क्या रोल है या हमें क्या कदम उठाना चाहिए। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमें नौजवान नस्ल को इस बात की रोशनी दिखाई कि ये ऐसी किताब जो है वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट है। तो ठीक लिखी गई, कहीं कहीं गलतियाँ हो गई हैं, वो अगर दुरुस्त हो जाए तो सब सही है। उर्दू प्रेस क्लब पिछले 10-15 वर्षों से मुसलसल अहम मौज़ूआत पर सेमिनार सिम्पोजियम मुनक़्क़िद करता रहा है, उसका इनेक़ाद कराता रहा है। तो ये कोशिश भी उसी का एक हिस्सा था, और हमेशा मेरी नज़र रहती है, ख़ास तौर से इदारे की नज़र रहती है कि कोई भी किताब किसी पब्लिकेशन ने शाया की हो और वो बहुत माने रखती हो तो उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। बस उसी कोशिश के तहत आज हमने आरिफुल इस्लाम साहब की किताब सर सैयद आज़ाद और हिंदुस्तानी मुसलमान पर ये मुज़ाकरा रखा, जो बेइंतहा बेपनाह कामयाब रहा, और हम अपने तमाम शुरका के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जहाँ तक ये किताब है सर सैयद मौलाना आज़ाद और हिंदुस्तानी मुसलमान, तो ये आरिफ साहब ने बहरहाल जो चीज़ें लिखी हैं वो काफ़ी तहक़ीक़ के साथ लिखी हैं। अब बहुत से लोग उससे मुत्तफ़िक़ हैं, बहुत से लोग मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। जैसे अभी जसवंत सिंह की किताब आई जिन्ना साहब के बारे में, तो बहुत से लोग उससे मुत्तफ़िक़ हैं, बहुत से नहीं हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि हमें अब कभी भी मौलाना आज़ाद को या जिन्ना साहब को या पाकिस्तान बनने को इस बहस में पढ़ने की बजाय आगे की तरफ सोचना चाहिए। और ये सेकुलर पार्टियों में जाकर हमने देख लिया कि आज मुसलमानों की कोई वक़्त किसी भी सियासी जमात में नहीं है। तो जब तक हम अपने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म नहीं होंगे, जो सर सैयद रहमान ने राह दिखाई थी कि सियासी तौर पर हम मुत्तहिद हों और दूसरे बिरादरान वफ़द के साथ मिलकर हुकूमत साजी करें और इक़्तिदार में शरीक हों, मैं समझता हूँ यही इस किताब का असल मकसद है। इस्लाम साहब ने एक नई कोशिश की है कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान और नई तस्वीर पेश की, और मुसलमान लीडरशिप और कॉमन मुसलमान जो यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसको इस किताब को पढ़ने के बाद ये देखना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में जो सर सैयद अहमद खान ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उससे मुसलमानों को एक क्वालिटेटिव चेंज क्या आ रहा है उनकी लाइफस्टाइल के अंदर, या उसका कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उसका असेसमेंट प्रॉपर होकर हमारे सामने आना चाहिए। जो कि आरिफ इस्लाम साहब ने एक कोशिश की, उसके अलावा दूसरी कोशिश ये की गई है कि जो मौलाना आज़ाद थे, जिनको नई कौम या नई नस्ल बोलती जा रही है, दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप, या दूसरी तरीके से
मुसलमानों की नई नस्ल, हमें उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद रखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जो नई नस्ल आए, खासतौर से मुसलमानों में से, वो ऐसी हो जो हिंदुस्तान को मजबूत और फॉरवर्ड लुकिंग हो, जो सोच में क्रिएटिव और ये कोशिश करें कि हम बदलते हुए इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर कैसे कॉन्ट्रीब्यूट। दोनों अदारों में क्या फ़र्क आपने महसूस किया? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैंने दोनों जगह तालीम हासिल की और मुझे दोनों जगह कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए फ़र्क नजर आया कि दोनों ही इदारे एक तरीके से स्टूडेंट लाइफ के अंदर चेंजेस लाते हैं। वो ये कि दोनों आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग देते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को क्रिटिसाइज करें, बल्कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये है कि आप एक क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलप करें जिसकी बेसिस पे हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर कर सकते। ये एक मेजर चेंजेस है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये काम करती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर ये काम करती है। मुझे लगता है कि सर सैयद अहमद खान ने जो यूनिवर्सिटी तामीर की थी, उन दोनों उनका मेरे ख्याल से बेसिक रीज़न ये था कि हम एक ऐसे लीडरशिप क्रिएट करें जो नेशंस के अंदर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। कहीं ना कहीं आप जो इस्लाम साहब की इस कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कोशिश के बारे में आरिफ इस्लाम साहब की वाकई ये बात सही है कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं। किसी पॉलिटिकल लीडर को बड़ा या छोटा क्रिटिसाइज करना बुरी चीज़ नहीं है अगर वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है और उससे सोसाइटी का भला होता है। अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स पेश करते हैं किसी तालीम के बारे में तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये सोसाइटी की डिमांड होती है कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स किसी भी पर्सनालिटी के बारे में जानें। जो उन्होंने कोशिश की है, हम उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हमारी सोसाइटी को ये ज़रूरत है कि किसी ग्रेट लीडर्स की हम डिफरेंट फेसेट्स को या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जानें, जो सोसाइटी की डिमांड है। तो जो उन्होंने एक कोशिश की है, हम उससे एग्री करते हैं, वो हमारा इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन हम ये हमारे लिए ये बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, खासतौर से इंडिया की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के लिए, कि हम एक लीडर्स के बारे में या पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में डिफरेंट या डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स कह सकते हैं ओपिनियंस है। किताब का असल मकसद क्या है और इस किताब से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि सर सैयद की राह सही थी, सियासी राह थी और मजहबी राह थी। मौलाना आज़ाद का रास्ता सर सैयद से मुतज़ाद था, लिहाजा हिंदुस्तानी मुसलमानों को आज भी सर सैयद की सियासी राह अपनानी चाहिए। और वो राह ये थी कि मुसलमान अपनी जमातें बनाएं और अपने एफर्ट्स करें, कानूनी एफर्ट्स करें, और अपनी जमात बनाए बगैर वो एफर्ट नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते। सर सैयद ने 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई, ये कोई नहीं जानता, बताते भी नहीं, और आखिरी पॉलिटिकल पार्टी का ही नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा। सर, मुस्लिमों की इमेज किस तरह से बेहतर हो सकती है? इमेज तो जब बेहतर होगी मुसलमान बेहतर होंगे। मुसलमान बेहतर जब होंगे जब वो इंटेलेक्चुअल उलूम की तरफ राग़िब होंगे और अपने अखलाक सुधारेंगे। ये किताब जो है वो आज गिरा हुई किताब को मैंने क्योंकि वादा कर दिया आरिफ इस्लाम साहब से कि मैं इसे छापूँगा और भले ही मेरे पास खत्म ना हो, मैंने अपनी साहबजादी का 60,000 रुपये लगा के इस किताब को छापा और आज उस किताब का गिरा हो रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी आरिफ इस्लाम साहब ने मैंने जिक्र किया है कि आप अल्लामा शिबली नोमानी पे किताब करिए तो फिर भी मैं छापूँगा और वापस दवाना